বাগানৰ শ্ৰমিকৰ চাকৰি ৰক্ষা, বাগানৰ মাটি ৰক্ষা, বাগানৰ মালিকৰ যি অত্যাচাৰ প্ৰতিহত কৰা আৰু এটা সময়ত এই বাগান সম্পূৰ্ণৰূপে বিক্ৰী কৰি পলাই যোৱাৰ এটা অৱস্থা হৈছিল। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर चर्चा असम में सिलचर के पास बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की और इसके लिए डोलू चाय बागान की जो 2500 बीघे ज़मीन अधिकृत की गई है उसे लेकर जो बवाल आंदोलन चल रहा है और इस घटनाक्रम में जो नया मोड़ आया है, आज चर्चा करूंगा एक बार फिर उसी की। आरटीआई में इस खुलासे के बाद कि सिलचर में किसी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं मिला है, समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले संगठन अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं, सफाई देते फिर रहे हैं। इसकी चर्चा मैंने पहले भी की है। अब सबसे ज़्यादा आज चर्चा करूंगा सीटू के रवैये पर। सीपीएम से जुड़े मजदूर संगठन सीटू ने भी उस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और उसके बाद जब आरटीआई से खुलासा हुआ तो भी, और समझौते पर हस्ताक्षर के बाद जब आंदोलन शुरू हुआ असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के बैनर तले, तो सीटू खुद को मजदूरों का सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा कर रही थी। कह रही थी कि मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए ही उसने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन आरटीआई खुलासे के बाद अब वह सफाई देते फिर रही है। उसने राज्य सरकार से, कछार के उपायुक्त से इस पर सफाई मांगी है आरटीआई से जो खुलासा हुआ है, और कहा है कि अगर एक सप्ताह में स्पष्टीकरण नहीं मिला तो वह आंदोलन करेगी। मैंने आपको दिखाया सीटू की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा, आगे और विस्तार से दिखाऊंगा। आखिर तक देखिए। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों से शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। मजदूर संगठन सीटू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी, सफाई दी और चलिए पहले आपको दिखाता हूं कि क्या क्या कहा। असमिया भाषा में है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन आप समझ जाएंगे। বাগানৰ শ্ৰমিকৰ চাকৰি ৰক্ষা, বাগানৰ মাটি ৰক্ষা, বাগানৰ মালিকৰ যি অত্যাচাৰ প্ৰতিহত কৰা আৰু এটা সময়ত এই বাগান সম্পূৰ্ণৰূপে বিক্ৰী কৰি পলাই যোৱাৰ এটা অৱস্থা হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত CITUৰ হস্তক্ষেপৰ ফলতেই কৰ্তৃপক্ষৰ হেঁচাত নতুন মালিকে আহি বাগানৰ দায়িত্ব ল'লে আৰু নতুন মালিকে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতো প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড আৰু গ্ৰেচুইটিৰ সমস্যা সমাধান হোৱা নাছিল। এতিয়া শেহতীয়া ঘটনাটো কি যে তাতে গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপৰ্ট প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপৰ্ট প্ৰতিষ্ঠা সংক্ৰান্তত অতি সম্প্ৰতি যিটো ঘটনা হৈছে সেইটো হৈছে আৰটিআই কৰি কাছাৰ জিলাৰ জনৈক ব্যক্তি তেখেতে আৰটিআই কৰিছিল। আৰটিআইৰ পৰা ওলাই পৰিল যে তাতে কোনো বাগানৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কোনো বোলে প্ৰস্তাৱ নাই। কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে জনাইছিল আৰটিআই যিটো উল্লেখ কৰিছে। আমি আৰটিআই কৰা ব্যক্তিগৰাকীক আজিৰ এই সংবাদমেলৰ মাধ্যমতে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এটা অন্তত ঘটনা তেখেতে পোহৰলৈ আনিছে আৰু যিসকল মানুহে তাতে আজি যিসকল শ্ৰমিকে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ সমস্যাত পৰি তেওঁলোকৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি আছে, আমি এইসকল শ্ৰমজীৱী মানুহৰ সপক্ষে থাকি এই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমি CITU সকলো কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়নৰ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনৰ সমৰ্থক। আমি যিসকল ট্ৰেড ইউনিয়নে তাতে এতিয়া শ্ৰমিকক বিপথে পৰিচালিত কৰি এই কাম কৰি আছে, তাতে উত্তেজনা বিৰাজ কৰা আছে, আমি সেইসকল ট্ৰেড ইউনিয়নৰ বিৰুদ্ধে আমি কোনো কথা ক'ব খোজা নাই। CITUৱে সদায় আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যা সমাধানৰ পক্ষ। আপোনালোকে বহি আলোচনা কৰক, তাত আমি সকলো কথা ক্লিয়াৰ হৈ লওঁ যে কি ঘটনা ঘটিছে। সংবাদ কৰ্মীসকলক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক, বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত সংবাদ মাধ্যমক, যে ঘটনাটো কি
আরটিআই চলাইছে যে তাতে বাগান প্রতিষ্ঠা করার কারণে কোনো প্রস্তাব বিমানবন্দর প্রতিষ্ঠা করার কারণে কোনো প্রস্তাব অসামরিক বিমান পরিবহন আটক নাই। কিন্তু 24 জুলাই 2019 আপনাদের হাতত মই ডকুমেন্ট দিছো, এই ডকুমেন্ট নিশ্চয় চাই লব। 24 জুলাই 2019 অসমৰ মাননীয় সাংসদ, গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত সাংসদ মাননীয় কুইন ৰজা ডাঙৰীয়াই এই পত্ৰ এই প্ৰশ্নাৱলী কৰিছিল পাৰ্লামেণ্ট সংসদত। আৰু সংসদত যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছিল তেতিয়া সংসদত মন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ দিছে যে ইয়েস, শিলচৰত গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰ বনোৱাৰ আমাৰ প্ৰস্তাৱ আছে। सीटू ने ताज़ा आरटीआई खुलासे के बाद हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सरकार जो समझौता हुआ उसे पूरी तरह लागू करे, मजदूरों को बकाया जो है उनका वो तुरंत भुगतान हो उसका, और अधिग्रहण का काम बंद रखकर मजदूरों में जो चिंता है, आशंका है, उसे दूर किया जाए, और बागान में जो अशांति का माहौल पैदा हो गया है उसे दूर किया जाए ताकि वहाँ और अशांति नहीं बढ़े और सबको रोजगार की गारंटी दी जाए। और उसने कहा है कि असम सरकार ने बागान मजदूरों को मुआवजा देने का ऐलान किया है, और इसीलिए लेकिन वो मुआवजा 1 लाख का है। तो सीटू ने मांग की है कि अस्थाई और अस्थाई तमाम मजदूरों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसमें सीटू ने कहा है कि अगर नया एयरपोर्ट बनता है तो डोलू चाय बागान के जो शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं उनको वहाँ रोजगार की गारंटी मिले। इसके अलावा सबको ज़मीन का पट्टा मिले, जो बागान में रहने वाले मजदूर हैं उनको ज़मीन का पट्टा मिले ताकि वो भविष्य के प्रति निश्चित हो जाए। उन्होंने कहा है कि ऐसी माहौल जो राजनीतिक फ़ायदे के लिए ऐसा माहौल बन गया है, उसके सबको मजदूरों के हित की चिंता कर इसको शांति बनाए रखना चाहिए ताकि बागान प्रबंधन इस बहाने से, आंदोलन के बहाने बागान बंद नहीं कर सके, लॉकआउट नहीं कर सके, तो इस पर निगरानी करनी होगी। उन्होंने मजदूरों से एकजुट होकर आंदोलन की अपील की है। सीटू के असम राज्य समिति के महासचिव तपन शर्मा ने और कई अन्य संगठनों ने भी आंदोलन की धमकी दी है। अब तमाम संगठन ऐसे जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे अब मजदूरों के हितैषी होने का दावा करते हुए उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। दरअसल यह लोग समझौते पर हस्ताक्षर तो इन्होंने कर दिए, लेकिन अब आम आदमी का मूड, डोलू चाय बागान के मजदूरों के मूड को देखते हुए यह लोग खुद को बचाने की कोशिश में अब मजदूरों का हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। तो कैसे रंग बदल रहे हैं संगठन, आज की रिपोर्ट में मैंने आपको ये बताया। आगे क्या होता है, लगातार आंदोलन तेज हो रहा है, पूरे देश में समर्थन मिल रहा है, अलग अलग कोनों से समर्थन मिल रहा है। आगे क्या होगा ये भी मैं आपको लगातार बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर आपसे अनुरोध, जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों से शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार।